Hello everyone, I am here today again discuss with our topic is stereochemistry, and today we are working on the drop isomerisms and RS configurations in diphenyls. You know, in case of the diphenyls, the two rings are attached with each other by a single bond. That bond is known as pi bond bonds, and these bonds are able to rotate this, helping to rotate this both phenyl rings correspond to each other. Okay, so here due to the rotations of these biphenyl rings, they are not able to show any kind of configuration as well as the chirality. So we need, if you want to show any kind of the configuration and to make the chirality inside this compound, so we need to follow certain rules. With the help of this rule, we are able to show the chirality as well as the able to assigning the configurations in biphenyl compounds. So which type of rules? The first rule, restrict rotation. If you want to gain a chirality in the given biphenyl compounds, so we need to restrict its rotation. So how we are achieving the restrictions in biphenyl compounds? The second rule is related to the restrictions. Attached more bulky group at ortho position in biphenyl. So क्या होगा कि इनका जो ऑर्थो पोजिशंस है, दैट इज ऑर्थो 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 ऑर्थो. In this ortho positions, we are just substituting by our hydrogens by using the bulky groups. So with the help of bulky groups, they are acquiring a coplanar structure, and due to this coplanarity, they are acquiring chirality, and by acquiring chirality, we are able to assign them R and S configuration. So what is the coplanarity? See guys, this is the model of the biphenyl compounds. These hydrogens are so small, तो इनके स्मॉल होने से एक रिंग इस पाइवोट बॉन्ड के थ्रू रोटेट करने लगती है. सो ड्यू टू द रोटेशंस वी आर नॉट confined its proper geometry and it is not reasonable. Okay, so what happened, we need to substitute a bulky group here. अब जब bulky groups यहाँ पे आ जाएंगे, so they at that time they are acquiring such a structure as a coplanar. तो यहाँ पे एक रिंग परपेंडिकुलर हो जाएगी दूसरी रिंग के. This ring is perpendicular to that one, and that one ring is perpendicular to another one. So due to the bulky group, they are not able to rotate. So they acquiring a coplanarity. When they acquiring a coplanarity and they are not able to rotate here and there clockwise or anti-clockwise, the such type of ring is known as the biphenyl rings. So that is the structure of biphenyl. जो ये ब्रॉड लाइन दिख रही है ये आपकी तरफ है और ये रिंग जो है ये प्लेन में है. सो दैट इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ दी बाइफिनाइल. मगर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर तब गेन होगा जब इसके ऑर्थो पोजीशंस पे बल्की ग्रुप्स अटैच्ड होंगे. हाउ वी नो व्हिच ग्रुप्स आर अ बल्की ग्रुप्स? सो बल्की ग्रुप्स के लिए क्या कहा जाता है? आई एम गिविंग यू सर्टेन क्राइटेरिया. सो द बल्की ग्रुप्स के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, that is the decreasing order of the bulky groups. The most bulky group is I, then the another bulky group is Br, then another one is CH3, then another one is Cl, then another one is N2, another one is COOH. Okay, COOH functional group, and the least one is OMe, methoxy group, and the last one is fluorine. So these are the decreasing order of the bulky groups. Which order? डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये एक आपका क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है. सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को हमें फॉलो करना है. यानी कि जो COOH से ऊपर के जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर इनको ऑर्थो पोजीशंस पे लगा दिया जाए, दे कॉजिंग हिंड्रेंस, एंड ड्यू टू द हिंड्रेंस the biphenyl rings acquiring a coplanarity. They are not able to rotate. If they are not rotate, so they are chiral. But if the OMe or fluorine groups are available there at ortho positions, they are not causing any restrictions और ये उनको अलाउड करते हैं मूवमेंट के लिए. तो जब वो मूव कर जाएंगी और मूव करने लगेंगी तो उनमें कोई भी कोप्लैनरिटी गेन नहीं होगी, एंड दे नॉट बिहेविंग लाइक टू बी अ chiral molecule. So I am giving you one example. They have another condition is also if the condition says if the size of the atoms
is if the size of substituents is smaller than 0.290 नैनोमीटर। अगर इनमें से किसी सब्स्टिट्यूएंट का साइज छोटा है, किसके कंपैरिजन में 0.290 नैनोमीटर से छोटा है, नॉट अफेक्टिंग रिंग रोटेशन, तो वो रिंग को रोटेशंस को स्टॉप करने में हेल्पफुल नहीं होगा। जैसे द साइज ऑफ द फ्लोरीन इज 0.270 नैनोमीटर, तो जो फ्लोरीन का साइज है वो 0.290 से क्या है, बहुत कम है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट अफेक्टिंग टू रेस्ट्रिक्ट द रोटेशंस ऑफ बाइफिनाइल रिंग और द पाइवट बॉन्ड्स, एंड द साइज ऑफ OMe इज 0.150 नैनोमीटर। और जो साइज होता है OMe का वो क्या होता है, और भी थोड़ी कम माना जाता है इस फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो these two groups are not affecting the rotations, that is another criteria in size of the on the behalf of the size of atom. So see guys, the next one is I'm giving you some example of the chiral and achiral biphenyl ring. तो biphenyl rings में chiral achirals का another examples जरा देखिए, ऑब्जर्व करिए। Suppose this one, ये एक आपका कंपाउंड्स है, okay, biphenyl ring का, that biphenyl rings have H and H, but here the size of the hydrogen is very small. So ये हाइड्रोजन का जो साइज है, the size of the hydrogen, suppose these are hydrogen, they are very small, देखिए एक दूसरे को कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So they are able to rotate, the rings are able to rotate correspond to each other, कभी ये रोटेट करेगी, कभी ये स्टेबल रहेगी तो ये रोटेट करेगी। If they are rotating, so they are not acquiring any chirality, so such type of compounds are achiral compounds, okay। So ये क्या है, एक achiral compounds है, they are not showing any kind of this what chirality। The next example is this one, ये आपका क्या है, another examples है। In that examples we are the groups are available at that time। तो मैंने अभी आपको कंडीशंस में क्या बताया था, जो बल्की ग्रुप्स हो वो कहां पे हो, ऑर्थो पोजीशंस पे, बट दिस ग्रुप्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये बल्की ग्रुप्स जो है ऑर्थो पे ना होंगे, मेटास पे हैं, सो दे आर आल्सो नॉट अफेक्टिंग और नॉट क्रिएटिंग एनी स्टेरिक हिंड्रेंस। In that case is also the ring are also able to rotate. If the ring is able to rotate, the such type of compound is also a chiral compounds, or they are not optically active compounds। तो यहाँ पे भी रिंग का रेस्ट्रिक्शन क्या है, शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल्की ग्रुप्स है वो ऑर्थो पे ना होकर मेटा पे अरेंज है। The next one example is see, in case of the another example, a tertiary butyl group and nitro groups are available at which position, ortho positions। So at that time this bulky group causing what, steric hindrance। तो अब यहाँ पे क्या होगा, NO2H और ब्यूटाइल और हाइड्रोजन के बीच में रेस्ट्रिक्शन कॉज होगा। So due to the restrictions these rings are not able to move freely। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग freely moves नहीं कर पाती हैं, और जब ये मूव नहीं कर पाएंगी तो ये क्या करेंगी, प्लेनर से कोप्लेनर में आ जाएंगी। सी सपोज ये कौन सा है, टर्शियरी ब्यूटाइल उधर वाला, और ये बल्की ग्रुप O कौन सा है, NO2। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस बल्की ग्रुप इज कोलैप्स, ये बल्की ग्रुप्स क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, एंड ड्यू टू द कोलैप्सिंग दे कॉजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, सी दिस ग्रुप्स आर कोलैप्स विद ईच अदर, ओके। सो दे एक्वायरिंग अ कोप्लेनरिटी, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कोप्लेनर हो जाएगा। तो एक रिंग्स तो क्या रहेगी आपका, ये इसके परपेंडिकुलर होगी और ये रिंग इसके परपेंडिकुलर होगी। सो दे टोटली रेस्ट्रिक्ट देयर रोटेशन। तो बल्की ग्रुप आने से इनका रोटेशन क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, एंड दे गेनिंग कोप्लेनरिटी। तो इस कोप्लेनरिटी के कारण द सर्टेन काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दीज आर नोन एज द chiral compounds। तो इसमें रिंग का रोटेशन क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ दिस बल्की ग्रुप एट विच पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। So such type of compounds are generally to be optically active and chiral compounds.
Okay, so these are the conditions in which the biphenyl rings acquiring a chirality as well as the optical activity. तो इन examples के behalf पे आप इसे कर सकते हैं. The next examples I am giving you. The next example is biphenyl is like to be this one. ये broad lines है, यानी कि ये एक कोप्लेनर कंपाउंड्स है. ये रिंग जो होगी आपकी तरफ है ऐसे करके, और ये जो होगी प्लेन में होगी. ओके, दिस द वन. सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, NO2 जोड़ दीजिए, एंड दिस वन इज, यहाँ पे आप H जोड़ दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, H जोड़ा, दैट हियर आल्सो अटैच COOH ग्रुप, और यहाँ पे क्या कर दीजिए H. सो सी लुक एट here is also a bulky group available at ortho position. तो ये COOH का इंटरेक्शन हाइड्रोजन से होगा, NO2 हाइड्रोजन से, and they both are restricted to each other. तो यहाँ पे bulky groups होने के कारण इनका रोटेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा. The certain kind of biphenyls are optically active compounds. इनका अगर आप मिरर इमेज भी ड्रॉ करेंगे तो इनकी मिरर इमेज भी क्या होगी, सेम होगी. ओके, सो इनकी मिरर इमेज भी सेम का आपका रेस्ट्रिक्शंस शो करेगी. सो दीस कंपाउंड्स आर नोन एज दी chirally active diphenyls compounds. तो ये फिनाइल कंपाउंड्स के बाद इसमें जनरेट होने वाला एक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अट्रॉप आइसोमेरिज्म. व्हाट इज द अट्रॉप आइसोमेरिज्म? अट्रॉप आइसोमेरिज्म इज अ phenomenon in shown by the अट्रॉप आइसोमर. क्या है ये फिनोमिनन? दैट इज रिलेटेड टू द बल्की ग्रुप्स. ये क्या है, बल्की ग्रुप्स के कारण पैदा होने वाला एक इफेक्ट्स है. सो सी, ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ दिस बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशंस, these type of rings are not able to move. इस बल्की ग्रुप्स के ऑर्थो पोजीशंस में होने के कारण द रिंग्स आर नॉट एबल टू मूव. जो रिंग्स होती है वो इजीली मूव नहीं कर पाती, एंड दे एक्वायर अ कोप्लेनरिटी. Their rotation should be totally restricted. So certain type of condition is known as the atrop isomerisms, and those compound are capable to shown certain type of effect is known as the atrop isomer. तो जब bulky groups के होने के कारण ऑर्थो पोजीशंस पे रिंग का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, they are not capable to move, the certain effect is known as the atrop isomerism, और इस तरह के कंपाउंड को आप atrop isomer कहते हैं. But they are showing certain conditions. जब अट्रॉप आइसोमर्स है उसको उसी कंपाउंड शो करते हैं. जैसे फर्स्ट कंडीशन, रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. रोटेशंस क्या होना चाहिए, टोटली रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए बाय by adding bulky group at ortho position. ये कैसे रेस्ट्रिक्ट करा जाएगा, जब हम बल्की ग्रुप्स को कहां लगाएंगे, ऑर्थो पोजीशंस पे लगाते हैं. ओके, ठीक. तो अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशंस क्या है. दूसरा कंडीशंस है नो वर्टिकल प्लेन. किसी भी कंपाउंड्स में जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो बाइफिनाइल्स या डाइफिनाइल्स कौन सा फिनोमिनन शो करेगा, अट्रॉप आइसोमेरिज्म. तो पहला कंडीशंस क्या है, द ऑर्थो पोजीशंस ऑफ बोथ रिंग्स. ओके, द ऑर्थो पोजीशन ऑफ बोथ बाइफिनाइल रिंग्स शुड बी हैव अ बल्की ग्रुप्स. तो क्या हो, जो ऑर्थो पोजीशंस है इन रिंग्स की जो ऑर्थो पोजीशंस हैं इस पे क्या होनी चाहिए, आपके बल्की ग्रुप्स अवेलेबल होने चाहिए. When the bulky groups are available, at that time they are capable to show, these are the ortho positions, and they are capable to show atrop isomerism. इसमें कोई भी vertical plane नहीं होना चाहिए. I am showing you the example of this related to that both conditions. The first one is I am showing you, see, this one is a compound, suppose biphenyl. Here is compound A, that one is A. यहाँ पे एक ग्रुप्स लगे हैं सपोज B, और यहाँ पे क्या होना चाहिए B. अब मैं यहाँ से वर्टिकली एक प्लेन पास करूं तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. A इसका रिफ्लेक्शन होगा, B इसका रिफ्लेक्शन होगा. सो यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन्स क्या है, अवेलेबल है.
बोथ रिंग्स में वर्टिकल प्लेन्स अवेलेबल है, तो ये अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ओके, अब इस पे देखिए, here is one vertical plane, the another one is, अब इस कंपाउंड्स में देखिए, that one is A, that one is A, that one is B and that one is C. Here is also we are passing a vertical plane. अगर इस पे भी एक vertical plane देखें तो यहाँ पे इतने कंपाउंड्स में क्या है, they both are showing a reflection, but half one ring is, the another ring is not showing any kind of reflection. But हाफ रिंग में तो रिफ्लेक्शंस नहीं है, इसको अगर कट करूंगा तो C का रिफ्लेक्शन कौन होगा, B, जबकि दोनों क्या है, अलग अलग। बट यहाँ पे A और A क्या है, सेम है, they both are same. So if you are cut it from that side by passing a vertical plane, तो A is reflected by another A. So एक रिंग में क्या है, वर्टिकल प्लेन का रिफ्लेक्शंस है। So due to the available of the vertical reflection in the above sides, such type of compound is also contain a vertical plane, and जो अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म है इसमें भी अवेलेबल नहीं होगी। So always remember, if your compounds have the vertical plane, the such type of compounds are inactive in case of altrop isomerism. Okay. Second one, second condition says a bulky groups in their ortho positions. तो bulky groups का phenomenon तो मैंने आपको भी बता दिया। जैसे किसी compounds में अगर bulky groups हैं तो वही इस isomerism को show करेगा। Suppose this NO2H, that one is NO2 or H. So here the ortho positions have the bulky groups NO2 or H. So there no plane is available, okay, और NO2 bulky groups हैं, ये तो एक दूसरे के rotations को क्या करेंगे, टोटली रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, और ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा, इस कंपाउंड्स में किसी भी तरह की जो है अकायरलिटी नहीं है, these are chiral compounds. If two conditions are available, so it means the given compound showing you अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपको क्या करेंगे, अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। So but I am also giving you one more examples, and you find out in the given examples the अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म्स available or not. अब देखिए इस कंपाउंड्स में क्या अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म्स है या नहीं है। ओके, so in the next case I am giving you so guys, यहाँ पे दोनों रिंग का रेस्ट्रिक्शन तो प्रोहिबिटेड है, रोटेट तो करेंगे नहीं क्योंकि लिंक बन गया है, बट यहाँ पे प्लेनैरिटी अवेलेबल है। ये देखिए, अगर यहां से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में, और यहां से भी कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के इसमें वर्टिकल प्लेन क्या हैं, अवेलेबल हैं। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज आल्सो आर नॉट एबल टू शोइंग अल्ट्रॉप आइसोमेरिज्म, और इस ये क्या है, एक तरह का अकायरल कंपाउंड्स है ड्यू टू द अवेलेबल ऑफ द प्लेनैरिटी। Due to the available of the planarity, the such type of compound is also known as the achiral compounds. तो अब आपको पता चल गया होगा टू कंडीशंस के भी हाफ पे। ओके, अब क्या है, अब हम इसमें क्या असाइन करते हैं, द लास्ट पॉइंट इज कॉन्फ़िगरेशन। सो वी आर गोइंग टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशंस इन आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन बाइफिनाइल। ओके, सो बाइफिनाइल्स में आरएस कॉन्फ़िगरेशंस करने के कुछ रूल्स हैं। द फर्स्ट रूल सेज, फर्स्ट रूल्स में क्या होगा, according to the RS configurations, the first rule says in biphenyl ring we are assigning priority from proximal to distal। जो आपकी प्रायोरिटी असाइन होगी वो प्रॉक्सिमल से डिस्टल होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल? दिस रिंग इज फ्रॉम माय साइड, ये ब्लू रिंग्स क्या है, फिनाइल रिंग्स, ये मेरे साइड है। सो दोज रिंग इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज नोन एज द प्रॉक्सिमल, एंड दोज रिंग इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दिस इज नोन एज द डिस्टल। तो यहाँ पे जो रिंग्स ऑब्जर्वर की तरफ होगी उसको आप क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल्स बोलेंगे, और जो रिंग अवे फ्रॉम दिस कंपाउंड होगी उसे क्या बोलेंगे, डिस्टल्स बोलेंगे। सपोज ये कंपाउंड है आपका NO2 और ये भी क्या है आपका NO2,
तो सपोज अगर नीचे से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ को, तो ये कौन सी रिंग होगी, प्रॉक्सिमल, और ऊपर वाली क्या होगी, डिस्टल। तो नंबरिंग कहां से असाइन होगी आपकी, प्रॉक्सिमल से 1 2 3 एंड 4। ओके, वी ऑलवेज असाइनिंग नंबरिंग फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। second condition says we are always moving, you know that rule always, we are always moving, second rule says we are always moving from high priority to low priority। हम कहां से कहां को मूव करेंगे, हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ को क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो देखिए हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी का रूल, एंड देन वी आर गोइंग टू असाइन हियर अ RS कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं अब हम इस तीन कंपाउंड्स को लेकर। The one examples I am giving you, the first one is कहीं से भी आप असाइन कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन इसका एक ही होगा। That one is H and this one is NO2, okay। And here is COOH और this one is H। Suppose if you are observing from here, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल, और ये क्या है आपका डिस्टल। And then we are going to assign, प्रॉक्सिमल में पहला नंबर NO2, फिर हाइड्रोजन, फिर इसके बाद थर्ड, और फिर क्या करेंगे, फोर्थ। मगर यहाँ पे एक कंडीशंस है, जो थर्ड है वो फोर्थ की तरह नहीं होना चाहिए। The third substituent is not to be like fourth substituent, and the first substituent is not to be like second substituent। जैसे यहाँ एक COOH लगा है तो यहाँ पे भी COOH नहीं होना चाहिए, और यहाँ H लगा है तो यहाँ पे भी H नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल प्लेन जनरेट हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है the third is equal to 2, अगर ये COOH है और दूसरी रिंग के सेकंड में भी COH लगा है तो चलेगा। एंड फोर्थ इज इक्वल टू 1, हाँ, फोर्थ पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो 1 पे नाइट्रो है तो फोर्थ पे भी नाइट्रो ग्रुप चल सकता है, मगर दोनों रिंग में एक जैसे ग्रुप अटैच नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे गेनिंग अ वर्टिकल प्लेन। सो सी, अब देखिए इसकी नंबरिंग कैसे करें। वी आर रोटेटिंग फ्रॉम हाई प्रायोरिटी क्या है, 1 2 एंड 3। सो वी आर रोटेटिंग लाइक दिस 1 2 एंड 3। तो ये कैसे रोटेट करा, एंटी क्लॉकवाइज। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज S configuration। See the next example, okay। This one is that is Br, that one is Cl, तो ये इसके इक्वल नहीं है। The another one is H and this one is CH3, ये इसके इक्वल नहीं है। So what we are doing, अब हम यहाँ से जरा देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ओके। ये क्या है आपका प्रॉक्सिमल, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका डिस्टल। तो वी स्टार्ट असाइनिंग नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4। तो ये कैसे रोटेट करेगा, 1 2 3, तो क्लॉकवाइज है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, next example is suppose इसको आप बैच लाइन से लिखा दो, क्योंकि ये कोप्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं, स्टीरियो में आपको लिखाना पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप जोड़ दीजिए COOH और यहाँ पे जोड़ दीजिए H, ओके, दैट इज शोन बाय अ डॉटेड लाइन, और हियर इज अ wedge line, okay, and that one is hydrogen and that one is suppose your OH group, okay। And we are also drawn a same mirror image, इसका एनेंटियोमर बनेगा मिरर इमेज में, सुपर नॉन सुपर इंपोजिबल्स होंगे। सो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, देखिए दोनों में ही असाइन कर लेते हैं। दिस वन इज, ये ऐसे था, दिस वन, ओके, डबल बॉन्ड्स इज हियर, अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड्स। यहाँ पे आपका क्या लगा है, COOH था, और यहाँ पे क्या था आपका H अवेलेबल था, और इस साइड क्या था आपका COH के साथ H, और इसका क्या था OH। सो दे बोथ आर नॉन सुपर इंपोजिबल एंड इनएंटियोमर। ये क्या है आपके इनएंटियोमर्स।
अब असाइन करते हैं इस केस में। सो अगर आप पहले क्या करें, यहां से देख लें, यहां से ऑब्जर्व करें, ओके। तो ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। अब आप यहां से ऑब्जर्व करें, ये क्या है आपका प्रॉक्सिमल है और ये क्या है आपका डिस्टल है। तो नंबर देते हैं इनको। द फर्स्ट वन इज गिविंग 1 क्योंकि यहां से प्रॉक्सिमल है, 2 3 एंड 4। कैसे रोटेट करा, 1 2 3। तो ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा, सो इट इज R। अब यहां से करें इसका जरा, तो प्रॉक्सिमल कौन सा है इधर वाला, सो दैट इज 1 2 3 4। सो 1 2 3 opposite direction, so its configuration is S. So both conformations or enantiomers have opposite configurations, so that is known as the Altrop isomerism. अब जरा Altrop isomerisms के इतने एग्जांपल्स के बाद इनका जरा वर्क कर लेते हैं बाइफिनाइल्स का की एक अनदर डेरिवेटिव्स में। Okay, I am giving you the another examples of the biphenyl is binephthol. एक binephthals का एग्जांपल देखते हैं। Binephthol types of compounds. Binephthol type of compounds में सपोज इसको मैं लिखा देता हूं जरा ब्रॉड लाइन से, ओके। ऐसे ही कर दीजिए और नीचे का क्या कर देंगे, प्लेन में डाल देते हैं। बाइनेप्थलीन है, नेप्थलीन डबल रिंग्स हैं। अब यहाँ पे क्या करें आप, लिखा दीजिए OH। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए आपका डायरेक्टली OH, क्योंकि दो नेप्थॉल हैं, बाइनेप्थॉल्स कहाँ है, ओके। सो आपका ये कंपाउंड्स है, सो बाइनेप्थॉल्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स है। मैंने क्या कहा था, ये दोनों में एक जैसा हो सकता है मगर एक ही में एक जैसा नहीं हो सकता। सो सी गाइस, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम कॉन्फ़िगरेशंस, मगर थोड़ी देर के लिए अगर इसको चेंज करके हम H कर दें, सो इट इज बेटर। अब इस कंपाउंड में देखिए क्या है, यहाँ पे जनरली कार्बन जुड़ा है और यहाँ पे भी क्या है आपका कार्बन। सो हियर कार्बन एंड कार्बन है। इसको अगर असाइन करना है तो यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका कार्बन जुड़ा है और यहाँ पे भी क्या जुड़ा है आपका कार्बन जुड़ा है। तो अब हम क्या करें, कहीं से भी ऑब्जर्व कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल, ये हो गया है आपका डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल से नंबरिंग स्टार्ट करें तो कार्बन हाइड्रोजन में नंबरिंग किसको मिलेगी, कार्बन को, सेकंड हाइड्रोजन को, ऊपर ऑक्सीजन को और फोर्थ मिलेगा आपका कार्बन को। तो कैसे रोटेट हुआ गाइस, दैट इज 1 2 एंड 3। सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज S। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आया S का। किसका एग्जांपल है ये, बाइनेप्थॉल्स टाइप कंपाउंड्स का। द नेक्स्ट वन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ R binap, okay, it is examples of the binaps and it is a very good example of binaps. So binaps is a biphenyls naphthals आपका phosphorus का generally it is considering into the examples phenyl rings का है। So see ये है, इसको भी आप इस लाइन से दिखा दीजिए क्योंकि कोप्लेनरिटी क्लेम करेगा, दैट इज PPH और इट इज आल्सो PH। अगर आप आर्सेनिक लगाना चाहें तो आर्सेनिक भी लगा सकते हैं फास्फोरस फैमिली का, ओके। सो दैट इज अनदर वन इज बेंजीन, दैट इज अनदर बेंजीन, ओके। सो दैट इज अनदर कंपाउंड्स। सो लुक इट देयर, वी आर असाइनिंग, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है। अब आप कहीं से भी ऑब्जर्व करिए, अब हम ऐसा करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ को ऑब्जर्व करते हैं तो यह है प्रॉक्सिमल और यह है डिस्टल। फर्स्ट नंबर मिलेगा फास्फोरस को, सेकंड मिलेगा कार्बन्स को। देखिए ये भी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि ये बेंजीन्स इधर नहीं रोटेट कर पाएगी और ये फिनाइल इधर नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे दूसरा नंबर किसको मिलेगा, तीसरा फास्फोरस को और चौथा फिनाइल। सो इट इज रोटेटिंग लाइक टू बी 1 2 and 3, okay. So it's to be generally known as the S configurations. तो ये इसका किस तरह से configurations जनरेट हुआ, S configurations की तरह से इसका generations होता है, okay. So that is of another compounds हमने जिसमें क्या करा, sorry this is not to be is a binary only. So it is to be a S configurational type of compounds. So see the next examples of certain type of compounds. इसी तरह से आप another compounds में भी क्या कर सकते हैं, इनको असाइन कर सकते हैं, या if you are going to assign
आर्सेनिक्स हैं, इससे आपका PH2 लग जाएगा। अनदर कंपाउंड्स है, अब यहाँ से ऑब्जर्व करिए नीचे से ऊपर की तरफ को, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड दैट वन इज डिस्टल। सो वी आर गिविंग असाइन द नंबर A arsenic to first, और द नेक्स्ट वन इज here is कार्बन सॉरी हाइड्रोजन्स, ओके। और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन्स, यहाँ पे लगा दीजिए आप क्लोरीन। सो अब यू जस्ट असाइन टू द नंबर 2 is here and third is to 1 and fourth is to chlorine, तो आप रिपीट करिए 1 2 and 3, तो ये आपका 10 मिलेगा। So these are the configurations of the RS configuration in case of the diphenyl। तो ये क्या है diphenyl के RS configurations है। So with the help of this configurations and outro isomerisms, we know the diphenyl are also optically active in certain conditions। But generally क्या कहा जाता है, these diphenyls are not able to form racemic mixture। Okay, ये racemic mixture formations नहीं करते क्योंकि इनमें rotations क्या है, prohibited है, ये restricted है rotations के लिए। So they are not able to show their what racemic mixture, but they are the three factors affecting, first of all ortho-para directing groups, the next one is heat। तो हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी रेसिमिजेशन ऑफ बाइफिनाइल्स, बट दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक यू।